তো বন্ধুরা আবার চলে এসেছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে। আজকে যে ভিডিওটার বিষয়ে কথা বলবো সেই ভিডিওটা আপনারা কম বেশি সবাই দেখেছেন, যে লখনউয়ে যে ঘটনাটা ঘটেছে, একটি লজ্জাজনক ঘটনা। একটি মেয়ে একটি ছেলেকে রাস্তায় চড় মারছে, কিন্তু এখানে ছেলেটা শুধু একটাই কথা বলছে যে ছেলেটা শুধু একটাই কথা বলছে যে আমার দোষটা কোথায়, কিন্তু মেয়েটা সেটা না শুনেও তাকে কী করলো, লখনউয়ের একটি থানাতে ছেলেটার নামে কমপ্লেন করে ছেলেটাকে জেলে ঢুকিয়ে দিল। প্রথমত ছেলেটার এখানে কোনো দোষ নেই, আপনারা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। তো ঘটনাটা যেখান থেকে একদম শুরু হয়েছে সেখান থেকে আপনাদেরকে বোঝাই, আপনারা যাতে খুব সহজেই বুঝতে পারেন। প্রথমে মেয়েটা বাসের সামনে দেখো, মেয়েটা আরেকটুর জন্য বাসের কাছ থেকে বেঁচে গেল। এবারে অন রোড ওই যে ক্যাবটার কথা বলছিলাম, ওই ক্যাবটা এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। এবারে আপনারা ভালো করে দেখুন যে গ্রিন সিগন্যালের সময় মেয়েটি কিন্তু রাস্তা পারাপার হচ্ছিল। এবার যখন রেড সিগন্যাল পড়েছে তখন সব গাড়ি স্টপ হয়ে গিয়েছে। এবারে মেয়েটি ড্রাইভারকে টেনে বার করার চেষ্টা করছে, কিন্তু প্রথমবার বার হলো না ড্রাইভারটা। তারপরে মেয়েটি ওই রাস্তার ওপারে গিয়ে পাথর ছুঁড়ে মারবে। দেখুন ওই পাথর আনতে যাচ্ছে, ওই পাথর তুললো, ওই পাথর তুলে এসে মেয়েটি ওই এবার গাড়ির কাঁচের উপর মারলো, ওই মেরে দিল গাড়ির কাঁচের উপরে। এবারে দরজাটা খুলে দেখুন এবারে ড্রাইভারকে বার করার চেষ্টা করছে। এবার ড্রাইভার বার হলো। এবারে এখানে ড্রাইভারের কোনো দোষই নেই, দেখুন সমস্ত দোষ এখানে মেয়েটার। এবারে ড্রাইভার যখন ওই বেরিয়ে আসলো তখন মেয়েটা ড্রাইভারকে মারতে লাগলো, কিন্তু তার আগে ড্রাইভারের ফোনটি মেয়েটি নিয়ে নিয়েছিল, ওই কারণে ড্রাইভার গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসলো। এই খবর যখন সব জায়গায় জানাজানি হয়ে গেল তখন একটি রিপোর্টার মেয়েটার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানার জন্য গিয়েছিল। তো দেখুন রিপোর্টারটার উত্তরে মেয়েটা কি বলছে। রিপোর্টারটা প্রশ্ন করছে আর মেয়েটা উত্তর দিচ্ছে আর এক। लखनऊ से वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की और एक कैब ड्राइवर के बीच मारपीट हो रही थी। রিপোর্টার দাদা, আপনি একটু ভুল বলছেন। এখানে মারপিট হয়নি, এখানে শুধু ছেলেটা মার খেয়েছে আর মেয়েটা মেরেছে। তো এটাকে মারপিট বলে না। একটা মেয়ে পাশে বসে আছে বলে ফট করে মেয়ের দিকে ঘুরে যাবেন, এটা তো ঠিক নয় দাদা, পাবলিক মেনে নেবে না। उसमें देखा जा रहा था कि आप उस लड़के को पीट रही थी, सच्चाई क्या थी? सर सच्चाई ये थे कि मैं हमेशा से जैसे रनिंग पे और वॉकिंग पे जाती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? तो और फिर ट्रैफिक लाइट को देख करके मैं जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कर रही थी, लेकिन सारी गाड़ियाँ ही लॉ को वायलेट कर रही थी, ठीक है। लेकिन मैं क्रॉस कर रही थी क्योंकि ये होता है कि आप को घर भी जाना है। और তো ম্যাডাম বলছি যে বাড়ি তো কম বেশি সবার আছে, সবাই বাড়িতে আসবে, তো আপনি তো সেই কিছু কাজবাজ কিছুই তো করেন না। তার 2-4 মিনিট যদি দেরি হয়ে যেত বাড়ি ফিরতে, তো এতে কী এমন অসুবিধা হয়ে যেত আপনার? गाड़ियाँ नहीं रुक रही थी, ट्रैफिक पुलिस खड़े होकर देखती है। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म। ठीक है, तो ये बहुत बार हो चुका है मेरे साथ इंसिडेंट। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। एक टाइम पे मैंने देखा कि एक गाड़ी आ रही है जिसमें लाइट्स मॉडिफाइड हैं। তো ম্যাডাম আপনাকে একটা কথা বলি, ওর গাড়ি ও মডিফাই করেছে, ও নীল লাইট লাগাবে না সাদা লাইট লাগাবে না ব্লু লাইট লাগাবে সেটা ওর ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাতে আপনার এত ফাটছে কেন? আর যদি এতই ফেটে থাকে তাহলে জান্ডুবাম ইউজ করে দেখবেন আর ফাটবেই না। বোকা লোক, পাগল ছাগল লোক, কথা বলতে পারে না, কথা আটকে যায়, ম্যায় 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 করে, গায়ে 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 করে। और वो बस मुझे उड़ाने वाली थी, ठीक है। तो वो इतनी ज़्यादा क्लोज आ चुकी थी, एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया, সুটিয়ে লাল করে দেবো, নোংরামি বার করে দেবো। और तीसरा वो मुझे हिट करने वाली थी और बहुत क्लोज आ चुकी थी एकदम मेरे, ठीक है। और जैसी मतलब एकदम टच हो गई थी। और उसके बाद ये है कि मैं इतना ज़्यादा डर गई क्योंकि मुझे 2 साल बहुत मारा इन लोगों ने। सर मेरे नाखूनों को देखिए, मेरे पैरों को देखिए, ठीक है, बहुत मारा है सर। और ये देखिए पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं, ये पूरे शरीर पे चोटें लगी हुई हैं। उन लोगों ने मारा था आपको? उन लोगों ने मारा था उस दिन की बात है? यस सर, वो पूरे सबको लेके आया था और मतलब पूरी मॉब ने मुझे मारा है 300 मीटर पे। ये देखिए हमेशा की तरह सर वो हमेशा मुझे मारते थे ऐसे ही, और यूपी पुलिस खड़े होके देखती थी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
और मैं कहती थी पकड़ो, तो वो लोग उसके पीछे जाते थे, छोड़ देते थे उसको, और वो फिर से पीछे से आ जाते थे वो कुछ लोग, और कहते थे कि कितने लोग थे, क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा है, ऐसा आप कह रहे हैं? उसके साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे लथेड़ते हुए मारते हुए 300 मीटर लेके गए हैं। हड्डी शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। भी तोड़ दी थी सर ये वाली, ठीक है, और अभी भी आप देखिए हाथ पूरा टेढ़ा है। कैब ड्राइवर ने कहा है लगभग 60,000 का उसका नुकसान हुआ है, उसका शीशा तोड़ा गया है, उसका मोबाइल तोड़ा गया है। वो धारा है लूटपाट की, तो मैं यूपी पुलिस से ये कहूंगी कि मैंने लूटपाट कहाँ करी है, आप वीडियो दिखाइए। আরে ম্যাডাম, আপনাকে যে প্রশ্নটা করছে তার উত্তর দিন, আপনার পরের প্রশ্ন ফের আবার জিজ্ঞাসা করা হবে। तो वो जो कह रहा है कि 60,000 का नुकसान हुआ है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ম্যাডাম, আপনি তো একদম সত্যবাদী, আপনি যে কথাটা বলছেন সেটাই সত্যি, আর বাইরের লোক যেগুলো বলছে সেগুলো সব মিথ্যে। और आपने मुझ पे लूटपाट की धारा लगाई है, जो वो आदमी कह रहा है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है यूपी पुलिस के पास। अगर प्रियदर्शनी ये समझना चाहेंगे 2 साल से मार रहे हैं का क्या मतलब हुआ? 2 साल से किसको कहना चाह रही हैं आप? सर कुछ ये लोग हैं यहाँ पे, जब भी मैं निकलती हूँ, आवारा टाइप के लड़के हैं, तो जब ये मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग पे के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, देखिए काफ़ी बीमारियाँ हैं मुझे, तो मुझे निकलना पड़ता है एक्सरसाइज के लिए। তো ম্যাডাম, একটা কথা বলি আপনাকে, এক্সারসাইজ তো কম বেশি সবাই করে, চাই অসুস্থ হোক আর সুস্থ হোক, তো এতে আবার এতগুলো কিছু ভেঙে বলার কি আছে? और उसकी गाड़ी की पूरी लाइट्स मॉडिफाइड थी, ठीक है, और इंडिया में लाइट्स मॉडिफाई नहीं होती, आप भी ये बात जानते हैं। কি ভুলভাল কথা বলছেন ম্যাডাম, কে বলেছে ইন্ডিয়াতে মডিফাই গাড়ি হয় না? লাল হয়, সবুজ হয়, হলুদ হয়, এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। গাড়ি মডিফাই করেছে, কোনো কেস হলে সে পেনাল্টি ভরবে, তাতে আপনার এত ফাটছে কেন, তো আমার মাথায় ঢোকে না। लेकिन उसकी गाड़ी की लाइट्स मॉडिफाइड थी, और मैंने रुका, मैंने उसको ये बोला कि अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, बाय लुक्स, ठीक है, वो भी मुझे देख रहा था, फोन भी चला रहा था साइड में, और पूरी मतलब वो स्पीड में आ रहा था, और एक टाइम पे उसने सिग्नल तोड़ दिया, ठीक है, और मुझे लगा अभी मुझे हिट करके मार देगा। तो उसी डर में आपने अटैक किया। प्रियदर्शनी जी क्या करती हैं आप? और सर मैं अभी तो जॉबलेस हूँ। तो ये तुम्हारा समस्या है। सर मैं कृष्णा नगर थाने से मैं अपने घर के लिए जा रहा था, आलमबाग चौराहे पे ग्रीन सिग्नल था, और ये महिला जो है रोड क्रॉस कर रही थी, ठीक है सर, ये महिला जो है रोड क्रॉस कर रही थी, उसके बाद ये आगे आती गई, जब रेड सिग्नल हो गया मैंने गाड़ी को स्टॉप कर दिया। जेब्रा क्रॉसिंग थी, जेब्रा क्रॉसिंग के पास मेरी गाड़ी रुक गई, ये लौट के फिर वापस आई, वापस आने के बाद मेरी गाड़ी में मोबाइल लगा था, मोबाइल इसने निकाला, मोबाइल तोड़ा, जब तक मैं गाड़ी से बाहर आया तब तक उसने मेरा मोबाइल पूरा तोड़ चुकी थी। 3-4 बार उसने मोबाइल को तोड़ दिया। मैंने पूछा मेरी क्या गलती है, मेरी क्या खता है बताइए आप, मगर ये कुछ बोल ही नहीं थी, सिर्फ मुझे ये तमाचे पे तमाचे मार रही थी। मैं सिर्फ यही कहता रहा मेरी क्या खता है आप बताइए, ये कुछ नहीं बोली। वहां पे जो पुलिस प्रशासन पूरा खड़ा था वो भी देख रहा था कि मैं सिर्फ यही कह रहा हूं मुझे मेरी क्या खता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन मुझे लेके चला गया थाने। मैंने कहा कि महिला पुलिस बुलाई जाए, इनको पकड़ा जाए, मैंने इनको जरा सा भी एक हाथ नहीं लगाया, ठीक है सर। फिर पुलिस प्रशासन मुझे थाने ले गया कृष्णा नगर जब मैं पहुंचा तो मेरी पूछताछ इंस्पेक्टर साहब ने करी, बोलने लगे कि क्या बात आपसे हुई। मैंने सर को बताया कि सर मैं जेब्रा क्रॉसिंग के पास था, वहां पे मैंने सिग्नल का पालन करते हुए गाड़ी स्टॉप कर दी, और ये महिला जो है क्रॉस कर रही थी, क्रॉस करने के बाद ये वापस लौट के आई, इसने मेरा मोबाइल गाड़ी से निकाला, तोड़ा। उसके बाद जब तक मैं दरवाजा खोल के बाहर निकलूं जब तक मेरा मोबाइल पूरा डैमेज हो चुका था। अब एक बार प्रियदर्शनी को भी सुनना बहुत जरूरी है, यहीं से अपनी कहानी आप आगे बढ़ाइएगा। प्रियदर्शनी, सरशनी का ये कहना है कि आप 100 लोगों के साथ में थे, उन पर हमला किया, कई 100 मीटर तक आप लोग घसीटते हुए लेकर के गए, ये तो एक महिला पर बहुत जुल्म किया गया है, अगर किया गया तो झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो,
जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। सर ऐसा कुछ नहीं है, ये सब झूठ बोल रही हैं। क्योंकि देखिए मैं, आपने फुटेज मेरा देखा, मुझे ये सिर्फ मार रही थी, मैं इनको कैसे घसीट के लेके जा रहा हूँ, जब मैंने इनको कोई हाथ नहीं लगाया और जनता वहां खड़ी थी, जनता मेरा सपोर्ट कर रही थी कि इस बंदे को क्यों मारा जा रहा है। और फिर एक बंदा वहां से गुस्से में आया, मेरा कोई वो नहीं था, सिर्फ वो जनता थी। तो अपने किए का अफसोस है प्रियदर्शनी, आपने जो किया उसका अफसोस है आपको? सर मैंने क्या किया है? जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। ये मेरी माता पिता ने मुझे ये सिखाया है कि किसी नारी पे हाथ लगाना बहुत गलत चीज है। शहादत अली, समझे सर जी आप? अरे शहादत अली, माता पिता को बीच में मत लाओ, माता पिता को बीच में मत लाओ। आप जो कह दें, रूल्स और रेगुलेशंस नहीं मानते हो इंडिया में। हमारे माता पिता ने हमें ये तालीम दी है कि किसी लेडी को मारना बहुत गलत है, ये इसीलिए मैंने आप पे हाथ नहीं लगाया। तालीम मैंने आपकी इज्जत करी और आप तालीम हमें जो है मुझे दोष दे रही हैं। मेरे तो लग गए, मेरे तो लग गए, मेरे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अपने न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार आप तक पूरा अपडेट देते चले आ रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया पे अभी कुछ मिनट पहले एक वीडियो वायरल हो रहा है कि प्रियदर्शनी नारायण यादव गिरफ्तार हो गई है। আর শাহাদাত আলীর মা বাবা যিনি আছেন তানার সত্যি শিক্ষার মানে জ্ঞান অনেকখানি, তার কারণ এরকম একটা ছেলেকে মানে এরকম শিক্ষা আজকালকার মা বাবারা খুব কমজনকেই দেন। তো আমি একটা জিনিস চাইবো যে পৃথিবীর সমস্ত মা বাবা তাদের সন্তানদেরকে যেন এরকম শিক্ষা দেয়, সে মেয়ে হোক বা ছেলে হোক, যেন কারোর গায়ে যেন মানে হাত না তোলে, যতই ঝামেলা হোক না কেন যেন কারোর গায়ে হাত না তোলে, কথা বলে সমস্যাটার সমাধান যদি করা যায় তো যেন করে নেয়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন আর কমেন্ট করবেন, আর আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো, এখানে কার দোষ, কার কে নিরপরাধ, এগুলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন। ধন্যবাদ।